Okay, so in the last lecture, I hope everyone remembers we were like venturing into the concept of 3D modeling. हम लोग पार्ट मॉडलिंग के अंदर आ गए थे, स्केचर मोड हमारा फिनिश हो चुका है. सो इसके अंदर आई होप यू रिमेम्बर मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था. वो टास्क था बेसिकली अबाउट ओरिएंटेशन, लाइक अंडरस्टैंडिंग कौन से प्लेन के ऊपर आपको मतलब ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करते हैं, राइट. लेट्स टेक दैट एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटेशन बिकॉज आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ट्यूटोरियल शीट के ऊपर, लाइक इफ आई सी दिस लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम, this object or this component has a certain orientation. Okay, when I go for this standard orientation button in PTC Creo, I want the final component to look like this or appear in this form. All right. So even for this particular one, like जब मैं standard orientation के ऊपर click करूँ, I want this component to look in the exact same way on PTC Creo as it is looking on this tutorial sheet. सो यहाँ पे हर चीज का एक स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन हमने आपको बना के दिया हुआ है. सो उसको अंडरस्टैंड करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट पहले आई एम प्रिटी श्योर कई स्टूडेंट्स को अभी ओरिएंटेशन का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा कि व्हाट डू आई मीन बाय ओरिएंटेशन. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, 3D sketch orientation in extrude, revolve, hole and cosmetic thread. So what I mean by that is, if I have, let's say, I'll take a component. ठीक है, let me share the screen. So what I mean by that is, let's say वो FRT वाली एक्सरसाइज करने से पहले, because I thought like उसमें भी कई स्टूडेंट्स को confusion था. Let us assume I want to make a part which when I click right, like जब मैं right view के ऊपर click करूं, I want that part or the finished product to look something like this. सो आई हैव अ आर्क है, यहाँ पे मेरे पास एक आर्क है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आर्क लगाई हुई है, लेट्स से इसका सेंटर यहाँ पे है. एंड लेट्स से मैं यहाँ पे एक नंबर भी देखना चाहता हूँ. लेट अस अज्यूम इट हैज टू बी 1 एंड आई से लेट दैट नंबर बी 7 ऑन दिस लोकेशन. तो मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन के बाद राइट क्लिक करूं, आई वांट दिस पार्ट टू बी ओरिएंटेड इन दिस सॉर्ट ऑफ फैशन. ठीक है, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसको देखते हैं पहले. सो लेट्स गो टू फेवरेट्स, आई विल सेट माय वर्किंग डायरेक्टरी, आई विल मेक दिस पार्ट क्विकली. ठीक है, लेट्स से आई डू नॉट चूज द डिफॉल्ट टेम्पलेट बिकॉज सर जस्ट फॉर जब हम सर जब हम इसमें सेव करते हैं ना, जी. तो जिस जिस हमें जो फाइल नेम दिया होता है इस समय उस नाम से सेव नहीं होता। वो S2D004 या इस नाम से सेव होता है। ओके, मैं आपको सेव करके दिखा दूंगा, मतलब आज जब कुछ सेव करूंगा ना उसमें आई शो इट टू यू. ठीक है, कि सेव कैसे नेम से कैसे करते हैं. सो अभी लेट्स से आई गो फॉर दिस डिफॉल्ट टेम्पलेट एंड let's say we go for millimeters newtons part solid. So let it just load. So what I mean by that is कि जब यहाँ पे आके when I click on right, मेरा जो final component है extruded component, it should look something like this. So what students as of now, like जब तक आपको orientation का concept नहीं पता, what you guys would be doing is you'll just come to, let's say, extrude. You'll just say okay, right plane पे बनाना है, you'll just click on right and you'll say okay, sketch view press करो, इसको orient कर लेते हैं, and then you just go to line and you'll just say okay, इसको quickly इस तरह से बना सकते हैं. Let's say I go to arc and I need to fill in a number 1 here. So let's say we fill in something like this. It's a rough drawing, ठीक है, just for understanding purposes. एक rough drawing हम create कर रहे हैं, nothing else. Not worried about the dimensions at all. So this is how I expect the drawing to look like. जब मैं इसका 3D मॉडल बनाऊं तो I'm hoping कि जब मैं right click करूंगा it would appear like this, right? And then let's click on OK and then let's give it a depth. मैंने 20 units का depth दे दिया and then it appears green. OK, so we click on OK. ठीक है, so you expect कि हाँ ये हमें बनाना था. This is what I wanted to make and this is what I have made. Now let's go to standard orientation. यहाँ पे जब हम standard orientation पे click करेंगे, this part looks like this and let's say because
मैं चाहता क्या था, आई वांटेड कि व्हेन आई क्लिक राइट दिस पार्ट शुड अपीयर इन दिस ओरिएंटेशन. नाउ व्हेन आई गो टू राइट, nope, this does not appear in that orientation. It has been rotated by 90 degrees. This is what I wanted, right? मैं ये चाहता था, but बना क्या है ये. So this is not the orientation I want. So what's the problem? Problem है हमने sketching plane तो correct पकड़ा. What is the sketching plane that we like got? मैंने बनाना right plane पे था. मैंने right plane correctly specify की है, पर उस right plane की orientation correctly specify नहीं की. सो ये ओरिएंटेशन करेक्टली स्पेसिफाई करते कैसे हैं? इससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास तीन प्लेन्स हैं. एक है राइट प्लेन, यहाँ पे ग्रीन कलर में ब्लिंक हो रहा है. एक है टॉप प्लेन जो यहाँ पे ब्लिंक हो गया. एक है फ्रंट प्लेन जो यहाँ पे ब्लिंक हो गया. हर प्लेन की एक नॉर्मल होगी. नॉर्मल से क्या हेलो मतलब है? हेलो जी हेलो सर. जी. who's this? डॉक्टर जसकरण जी आप? हाँ जी. सर विशाल बोल रहा हूँ. पता नहीं मैं 16 से ऐड किया था बट आई डोंट नो व्हाई मैं इस आईडी कैसे आ गया. लेट मी चेक. सॉरी टू इंटरप्ट यू. सॉरी सर मेरा वन ही है, कंफर्म्ड है जी. So coming back to this example, so हर plane का एक normal है, correct? Normal in the sense यहाँ पे आपको एक reference system, coordinate system दिख रहा होगा. You have x, यहाँ पे इसको select करते हैं. Wait a second. So you see this highlighted thing now. If we zoom it a little bit, let's say we click on it now. So you see x. X is the normal to the right plane, correct? Y is the normal. Where is y? Y is pointing upwards. Y is the normal to this top plane, correct? And z is the normal to this front plane. Anyone having any doubts कि x y z क्या है? x y z directions आपके तीन planes की तीन normals हैं जब हमने कोई standard orientation रखा हुआ है. So इसको जब हम orient करेंगे, like let's say, now if I wanted to make this correctly, where is the fault? मैंने गलती कहाँ पे की? Let's say we go back to extrude again. Extrude में गए, यहाँ पे we have this option like option of placement. हमें placement correctly define करना है. So we go to placement, we say define. Let's say I want to construct something. I wanted to construct this figure. So when I click here, it is basically asking me to select the plane where you would like to construct your geometry. तो मैंने right plane के ऊपर अपनी geometry को construct करना था. So this is the right plane. So in this green portion, I click once and then I go to right plane. So as and when I do that, एक reference plane और select हो जाता है. So this reference plane is top plane and it is being highlighted in the green color. So let me orient it, like orient this figure with the help of mouse. यहाँ पे अगर मैं इसको orient करूँ, so this is, I would say, the best we can do. यहाँ पे दिख रहा है. Now this reference plane, top plane कौन सा है? ये green plane. इस green plane की normal कौन सी है? That's y direction. At this given point of time, y is pointing in the upwards direction. When I say upward, मैं उसको बोलूंगा top. ठीक है? यहाँ पे orientation specified क्या है? That is left. So now let's understand this dialog box. What I did is मैंने बोला कि मैं right plane के ऊपर sketch करना चाहता हूँ. मैंने जैसे ही उसे select किया, वो select हो गया. तो मेरी geometry अब इस z plane में बनेगी. Correct? यहाँ पे y ऊपर है, z in the left side. So मेरी जो geometry है वो yz में बनने वाली है. साथ के साथ एक रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट हो गया व्हिच इज बेसिकली टॉप. टॉप की नॉर्मल y, इट इज पॉइंटिंग इन द टॉपवर्ड्स डायरेक्शन, बट द सिस्टम इज सेइंग कि आई विल कीप इट टू लेफ्ट. दैट मींस y इस तरफ टिल्ट हो जाएगा. ऑलराइट, बट मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं कि मैं इसे टॉप पे ही रहने दूं एंड देन आई स्केच इट. सो व्हेन आई क्लिक ऑन स्केच keeping y in the upwards or in the top direction, I will get the orientation, basically this one, which I want. Okay. So if I click on sketch view now, so this was the correct orientation for drawing, but वो गलत इसलिए हो गई because हमने y को left की तरफ tilt कर दिया. अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया, so when I put it to left, ये left by default था, तो उसके ऊपर मैंने sketch कर दिया. मैंने orientation ठीक नहीं किया and then I sketched on it and then when I clicked OK,
सॉरी वेट, आई डिडंट स्केच एनीथिंग। सो ये ओरिएंटेशन इस तरह से गलत आई, ठीक है। किसी को कोई डाउट ये पॉइंट समझने में? सर एक बार दोबारा बता दो ओरिएंटेशन का। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस पार्ट। ये समझ आ गया कि टॉप प्लेन राइट प्लेन पे कंस्ट्रक्शन करनी है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट क्लियर है कि टॉप प्लेन मेरा रेफरेंस प्लेन बन गया था, करेक्ट है? यस सर। टॉप प्लेन की नॉर्मल वाई डायरेक्शन में है, करेक्ट है? यस सर। और y को आप ऊपर ही देखना चाहते हो, पर उसने लेफ्ट में कर दिया। लेट मी डिलीट दिस पार्ट एंड कंस्ट्रक्ट इट वन मोर टाइम, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो दिस इज द ओरिजिनल ओरिएंटेशन। वी गो टू एक्सट्रूड, वी गो टू प्लेसमेंट नाउ, एंड आई डिफाइन द स्केचिंग प्लेन। स्केचिंग प्लेन कौन सा चाहिए? राइट प्लेन, ठीक है। यहाँ पे जब मैं राइट पे आता हूँ, हॉवर करके उसको देख भी सकता हूँ। रेफरेंस प्लेन मेरा टॉप प्लेन बन चुका है, ठीक है। टॉप प्लेन कौन सा वाला है? जो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है। टॉप प्लेन की नॉर्मल कौन सी है? वो है y। और y अभी वो बोल रहा है कि लेफ्ट की तरफ ओरिएंट करूंगा। मैं कहता हूं नहीं, आप लेफ्ट पे नहीं, उसे टॉप पे ओरिएंट करो, करेक्ट। सो इसे टॉप पे ओरिएंट करके जब आप स्केच प्रेस करोगे और आप स्केच व्यू में जाओगे, देखना ये फिगर टिल्ट किस तरह से होती है। मैं इस प्लेन के अंदर ये यहां पे स्केचिंग करूंगा इन द प्रॉपर डायरेक्शन, जिसमें y ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होगा। लेट मी डू इट। जो पहले y लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा था, y अभी ऊपर की तरफ है। हेलो आयुष, आप तो एक बार उसका मीनिंग, क्या मीनिंग है, मतलब टॉप में ओरिएंट करना है या लेफ्ट में ओरिएंट करेगा? ओके, टॉप में ओरिएंट और लेफ्ट में ओरिएंट। लेट्स से वी डू बोथ द ड्राइंग्स ऑन दिस थिंग, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ड्राइंग ये बना देता हूँ एंड sorry. Sir, where was that option for the dialog box? I'll just show it. I need to construct it once. मैं अभी शो कर देता हूँ। Something went wrong. Which portion? Okay. Sorry, वो थोड़ा छोटा बन गया figure, so that's why we're having this trouble. So अभी y किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर, करेक्ट। इसको पहले एक बार बना के देखते हैं एंड देन आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन। इसको जब ओके किया एंड आई गिव इट लाइक 20 यूनिट्स एंड देन आई गिव ओके एंड आई सिलेक्ट ओके हियर। Now let me go for standard orientation. This is how it looks like in the standard orientation. And when I go to right, I'm getting what I wanted. This is what I wanted कि ये vertical line यहाँ पे हो, आप नीचे हो, 1 यहाँ पे हो, 7 यहाँ पे हो, करेक्ट। ये यहाँ पे है। I'm now coming back to the question कि वो dialog box की option का है। You go to sketch, यहाँ से drop down menu से select करके you go to this option of edit definition, you go to this option of sketch setup, टॉप पे है, ठीक है। You go to sketch setup और sketch setup के अंदर जाके you can basically now orient it as per your wish, ठीक है। पर अभी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब आपको कंस्ट्रक्शन को चेंज करने का मौका यहाँ पे करना कर सकते हो, बट वी डू नॉट चेंज इट एनी हाउ। सो यहाँ पे टॉप का मीनिंग है y is pointing in the top direction, बॉटम का मीनिंग है y is pointing in the bottom direction। इसको करके देखते हैं what will bottom mean। Your y is now pointing in the bottom direction. When I click on left, it is like y is pointing in the left direction, and right, your y is pointing in the rightwards direction. ठीक है? Anyone having any doubts? इसको जितना practice करोगे ना उतना अच्छा होगा. Just by observing, you will not be able to understand. Let me do that FRT example now. उससे थोड़ा और clarity आएगा. अभी मेरा कंटेक्स्ट था ये ओरिएंटेशन को समझाना, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट गेटिंग कि ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है। आई होप नाउ एवरीवन गेट्स द कंटेक्स्ट। ओरिएंटेशन का मीनिंग ये चीज है,
यहाँ पे से सर copy। सर सो मतलब आपने जैसे स्टार्टिंग में जब हम बिना इसके डायलॉग बॉक्स से कर रहे थे तो सर वाई वाज असाइन्ड एंड लेफ्ट, लाइक जैसे मैं अभी लैपटॉप पे देख रहा हूँ, Yeah, तो वी डिड फर्स्ट चेंज द एक्सेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड देन वी डिड द ड्राइंग। yes, that's the statement कि मैं चाहता हूं कि y टॉप पे रहे, तभी मुझे ये ओरिएंटेशन मिलेगी। Alright, like it's your need, you want this to be in the top direction. So इसको practice कैसे करते हैं? Let me sketch it out and let's say okay, let's say we delete this one. Alright, now let's come back to that FRD example. उसको अगर करें तो like, so what was the need in that question? I want on the front plane I get F, on the right plane I get a R, and on the top plane I get a T. सर और अगर इसको कभी ओरिएंट, सर कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे सपोज हमें जैसे एग्जांपल नंबर 1 है 232 का। सर उसमें जब हम पार्ट ड्रॉ कर रहा होता तो सर क्या हो रहा था कि ऊपर से मेरा पार्ट नहीं आ रहा था। मतलब ऊपर से जैसे खाली है ना, मतलब थोड़ा सा गैप है 10 का। मतलब दोनों पार्ट के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 10 का है। ये वाला। बट हाँ, बट देखिए मेरा हाइट डिफरेंस कहाँ से आ रहा था, नीचे से 10 आ रहा था। मतलब ऊपर मेरा पार्ट फिक्स हो गया दोनों, वो फिर मतलब आपने स्केचिंग प्लेन्स गलत लिए होंगे, उसमें ओरिएंटेशन का चक्कर नहीं, आपने प्लेन गलत सिलेक्ट किया ओरिएंट स्केच करने के लिए। आई टेक सर दिस मेरे को एग्जांपल इफ टाइम परमिट्स, आज करके भी दिखाऊंगा ये एग्जांपल। ठीक है सर। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग लाइक क्विकली लेट्स डू इट आउट। ठीक है, सो फ्रंट प्लेन पे एफ देखना चाहता हूँ, सो वी विल स्केच एफ on the front plane. So I go to extrude, I go to placement, I go to define. So the green color is for like selecting the sketch plane. किस plane पे sketching करनी है? मैं front plane पे करूंगा y x plane के ऊपर। ठीक है, so इसे select करता हूँ। जैसे ही select किया वो कहता है reference plane कौन सा है? Reference plane उसने चुना मेरा right plane. Right plane की normal कौन सी है? वो है x. x को मैं देखना किधर चाहता हूँ? Just quickly tell me कि अगर मुझे f इस सेंस में देखना है, इस ओरिएंटेशन में, where should I place x? To the right, to the left, to the top, to the bottom? Left. Left. So to the Sir, right. right. Right only. हाँ, right में देखोगे। Just look at this orientation x y z कैसे दिख रहा है? Let me select sketch. यहाँ पे आप ध्यान से देखो x y z कैसे दिख रहा है। अभी x right की तरफ ओरिएंट कर रहा है अब by default. When I click on sketch view, let's see how it orients. अभी भी x right की तरफ Okay, ओरिएंट कर okay. रहा है. So that's why if I quickly go and make a like a rough F sort of a structure. एक्सक्यूज मी सर। जी, सर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यहाँ पे आपके सर जहाँ पे क्यूब्स बने हुए हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द जूम साइन, जूम आउट एंड जूम इन, ये सर यहाँ पे व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू करके। यही वाले। हाँ, सर यहाँ से भी कर सकते हैं स्केचिंग नहीं शुरू? नहीं नहीं, ये सिर्फ देखने के लिए। How you want to orient the object after it has been constructed. राइट सर। जब बन गया, जैसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते थे ना, आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू वो बना दिया, आपको एक पिक्टोरियल व्यू दिखा देते हैं हम। स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन क्या है? एक तरह का पिक्टोरियल व्यू है, और अब आप देखने जाते हो कि फ्रंट व्यू कैसा लगेगा सोर्स ऑब्जेक्ट का, तो आके आप फ्रंट पे क्लिक कर देते हो। दैट्स इट। राइट सर। फ्रंट जस्ट मींस एक्स वाई। ठीक है, फ्रंट प्लेन Yes, का sir. मीनिंग क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो अभी हम फ्रंट प्लेन पे ही स्केच कर रहे हैं। सो लेट्स क्लिक ओके ऑन दिस। यहाँ पे इसकी थिकनेस अभी हम विल जस्ट गिव इट अ रैंडम थिकनेस 20 यूनिट्स, नथिंग बियॉन्ड दैट। इसको ओके कर दो, एंड देन स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में ऐसे दिखता है। और मैं चाहता क्या था कि फ्रंट प्लेन क्लिक करने पे जो भी आप पूछ रहे थे ये कैसे दिखे, मैं ऐसा ही चाहता था इसी ओरिएंटेशन में। डायमेंशंस का कुछ प्रॉब्लम जो भी आ रहा है उसको इग्नोर करो, ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस करो। करेक्ट। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट R on the same figure to understand it properly. ठीक है, लेट्स गो टू एक्सट्रूड, लेट्स गो टू प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर R का लेटर मैं राइट प्लेन के ऊपर इस ओरिएंटेशन में मैं चाहता हूं। दिस इज माय नीड, आई वांट टू सी R इन दिस ओरिएंटेशन स्ट्रेट लाइक स्ट्रेट अप। मैं आई डोंट वांट R लाइक दिस, ये नहीं चाहता मैं। आई डोंट वांट R लाइक दिस, ये नहीं चाहता मैं। और आई डोंट वांट R लाइक दिस, मैं नहीं चाहता। दिस इज व्हाट आई वांट। So if I come back to this,
So where is the sketching plane? This is the right plane here. ठीक है, right plane के ऊपर sketch करते हैं. I select right. मेरा reference plane top plane बन गया. Top plane आपका कौन सा है? ये green color का plane. Green color के plane की normal कौन सी है? Y. Y कहाँ point कर रही है? Top पे. यहाँ पे orientation दी हुई है left में. मैं कौन सी orientation में इसको sketch करूं? आप बताओ. Top. How many students feel top is the right answer? कि y को top पे रखना चाहिए मुझे. Yes, sir. Top. Top. Okay, let's do top then. And then sketch it out. Now let's see how it rotates. It got rotated in this sense. Let's quickly construct a R-shaped figure. सर जो रेफरेंस प्लेन है उसका काम क्या है वैसे? रेफरेंस प्लेन आपको ये y डायरेक्शन बेसिकली ये r की ओरिएंटेशन डिसाइड करने में हेल्प करता है कि r आपका इस तरह से ही बने जैसा आप चाहते हो. तो मैंने y को टॉप डायरेक्शन में स्पेसिफाई किया. अगर मैंने y को कुछ और डायरेक्शन में स्पेसिफाई किया होता तो कंस्ट्रक्शन आपकी उस तरह से हो जाती. मतलब अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है तो आप गलत ओरिएंटेशन में भी सही स्केच बना सकते हो. बट इफ यू हैव द कैपेसिटी, इफ द लाइक सॉफ्टवेयर इज गिविंग यू द ऑप्शन to choose a convenient sketching plane and a sketching orientation, so why not choose it? Okay? Yes, sir. So let's click on OK and let's give it a random thickness again, 10 units, and click on OK. Now let's see what's the standard orientation. This is the standard orientation. Now when I click on right, I get what I wanted. Okay? The statement is I wanted R to be like this, just like I want this object or component to look like this when I click standard orientation. मैं चाहता हूं कि ऐसे दिखे. बना तो हम देंगे पर final product इस orientation में दिखे. Likewise, let's see now we go for the option of T. ठीक है, T को construct करना है. So let's again construct it on the same figure. Extrude press करते हैं, placement पे जाते हैं, define करते हैं. Sketching plane top plane होगा. That is the XZ plane. यहाँ पे X है, ये Z है. रेफरेंस उसने चुना है राइट प्लेन को. ठीक है, राइट प्लेन कौन सा है? ये वाला. राइट प्लेन की नॉर्मल कौन सी है? वो है x. अब x अगर इसकी नॉर्मल है विच इज पॉइंटिंग इन द राइट डायरेक्शन और ये ओरिएंटेशन सजेस्ट कर रहा है राइट, ये कुछ भी सजेस्ट करेगा, हमें इससे नहीं लेना देना. हम खुद चूज करेंगे इन चार ऑप्शंस में से हमें क्या चाहिए. ये जो भी सजेस्ट कर रहा है एट रैंडम है, हम क्या चाहते हैं. सो लेट मी नो इफ आई वांट t टू बी इन दिस ओरिएंटेशन, वेयर शुड आई प्लेस द x डायरेक्शन. राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बॉटम पे. हमारा स्केचिंग प्लेन एक्स जेड है, ये नीचे वाले पे स्केचिंग होनी है. एनी गेसेस? The top. Right, sir. Top. Right. How many people feel it's the top plane? Right, if you could raise your hand. That means x ऊपर हो जाएगा. But I feel कि x को right में रखने में फायदा है. If I sketch it on the right plane and then I go for this orientation, I hope यही top का orientation है, यही दिखेगा बाद में. So if I take a T here, sorry, I need to choose it again. I did a mistake. I'll choose the top plane और right plane की right x की orientation right रखते हुए इसे sketch करते हैं. इसको थोड़ा understand करना पड़ेगा, ये practice खुद से करो by choosing different examples. Then you get a better understanding कि ये कैसे हो रहा है. So we select OK. Let's give it a random like 20 units thickness. And we click on OK. Let's go to standard orientation. So now when I go to top, I get T in the direction or orientation I desired it to be. So R right, X को right में रखने में ही फायदा था. So anyone having any doubts in this FRT example that I just did? सर सर अगर स्केच प्लेन अलग अलग हम ले सकते हैं कि मतलब
अपने हिसाब से, फिर उसके हिसाब से ओरिएंटेशन चेंज रहेगी ना फिर हर बार। हाँ, आपकी चॉइस है, बस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिफाइन किया है। मैंने कहा है जब मैं फ्रंट पे क्लिक करूं, कौन से फ्रंट पे, जब मैं यहाँ आके फ्रंट ऑप्शन पे क्लिक करूं, दैट मीन्स कि मैं फ्रंट पे स्केच करना चाहता हूँ। इसमें इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है तो कि वो सर जब वो मैं क्वेश्चन में फ्रंट पे दिया क्लिक रहेगा ना करूं, हमेशा। नहीं क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा कि ये 3D स्केच ओरिएंटेशन लेके आओ। नाउ यू हैव टू चूज कि ये कंपोनेंट कौन से प्लेन पे बनेगा। राइट, यू आर द वन हु विल चूज इट। ठीक है। ठीक है। वाले क्वेश्चंस में दे रखा है, हाँ जी, नीचे क्वेश्चंस में गिवन है, कहाँ मतलब दो पे? तीन क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कौन से क्वेश्चन में बताया? Where is it? फोर्थ वाले में सर। हाँ इस वाले में। हाँ, इसमें चलो यू गेट द ऑप्शन, बट यूजुअली एग्जाम में नहीं बताया जाएगा या प्रोजेक्ट्स में नहीं पता होगा आपको। तभी इतना एक पूरा एक लेक्चर में डेडिकेट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ओरिएंटेशन के मार्क्स होते हैं प्रॉपर। सो इफ यू हैव अ लैब टेस्ट और समथिंग, ओरिएंटेशन के यू गेट अबाउट 20-30% मार्क्स होते हैं। ओरिएंटेशन गलत है तो यू गेट लाइक इवन इफ द एंटायर क्वेश्चन इज करेक्ट, यू विल बी गेटिंग लाइक a 7 on 10, 3 marks or 2 marks of orientation only. So यहाँ पे like जब आप राइट क्लिक करो यू गेट R, टॉप क्लिक करो यू गेट T. I define the question, but here nobody will define anything for you. You have to decide ये फ्रंट पे बना है, राइट पे बना है, टॉप पे बना है। ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? Yes, sir. So after we have drawn the figure F, sir, then we can click on the face accordingly. So that double click on the face and go on sketch view. हाँ, you can उससे do that as well. Let's say, are you trying to say कि यहाँ पे? So if you हाँ have जी to सर। like edits, यहाँ पे अगर खाली एक्सट्रूड में एडिट करने हैं, मतलब कितनी थिकनेस बढ़ानी है घटानी है नहीं किसी सर, प्लेन। मतलब अगर आप मतलब इसके फेस पे डबल क्लिक करोगे और मतलब स्केच पे चले जाओगे सीधा, तो ऐसे हो सकता है? नहीं, यहाँ से सिर्फ आप डायमेंशंस चेंज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ पैरामीट्रिक मॉडल। तो यहाँ पे अगर मैं ये डिफाइन की हुई है मैंने, लेट्स से इफ आई मेक इट 20 हियर, तो वो ऑन द स्पॉट चेंज कर देगा। मतलब यू कैन डू इट बट नॉट रिकमेंडेड, आई वुड से कि कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज में ना तो कौन सी मतलब सर डायमेंशन। अगर हमें प्लेसमेंट मतलब करना पड़ेगा हर एक मतलब फिगर के बाद, मतलब डायरेक्ट ऐसा कुछ कर नहीं सकते ना? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं? सर मतलब हमें प्लेसमेंट करना पड़ेगा ना आर और टी फिगर के लिए, मतलब डायरेक्ट अगर डबल क्लिक एफ पे करके डायरेक्ट स्केच व्यू में चल जाए तो उससे मतलब थोड़ा मतलब ओरिएंटेशन में फर्क आ जाएगा। आई स्टिल डोंट गेट योर क्वेश्चन राघव, मैं नहीं कैच कर पा रहा, सर मुझे इतना आप पता। हाँ, आप सर जो एफ का आपका फ्रंट फेस है उस पर डबल क्लिक करना। कर दिया। सर सिंगल क्लिक करो, एक स्केच व्यू आएगा। एक मिनट, एस्केप दो ना, एस्केप। दबा दिया। सर एफ पे जाओ, क्लिक। हाँ जी एक सर, ये मिनट। यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है स्केच व्यू का, नीचे नीचे। हाँ जी सर, अगर इस पे चल जाओ। इसमें मत जाओ, ये एक्सटर्नल स्केचेस हैं, मैं ये टीच भी नहीं करूंगा। ठीक है। लाइक आई टेल यू, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन रहा है यहाँ पे। ये सेक्शन से, ये स्केच है, सेक्शन मीन स्केच, इस सेक्शन से ये एक्सट्रूड हुआ है। ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखो, जो ऑप्शन आप मुझे राइट क्लिक करने को कह रहे हो ना, वो यहाँ पे है एक्चुअली। दिस इज एन एक्सटर्नल स्केच। इसकी जरूरत जितना आप अवॉइड करो उतना करेंगे। अगर मैं चाहता तो ये FRT मैं एक्चुअली करके दिखाना नहीं चाहिए, बट लेट मी स्टिल डू इट। लेट्स से मैं स्केच पे क्लिक करता हूँ, I select a plane, let's say I select a top plane, and then whatever orientation it is, अभी orientation नहीं समझा रहा मैं, and I sketch it out। ठीक है। यहाँ पे let's say you make a shaft, you make a circle, मैं इसकी shaft बनाना चाहता हूँ, and I click on OK। So now यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल ट्री के अंदर अब 4 कंपोनेंट्स हैं। वन इज एन एक्सट्रूड, वन इज द सेकंड एक्सट्रूड, वन इज द थर्ड एक्सट्रूड, एंड देन देयर इज अ स्केच व्हिच इज बेसिकली दिस शाफ्ट। तो इसके ऊपर अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और मैं इसको एक्सट्रूड करूं, लेट्स से टू एनी लेंथ, लेट्स से 40 यूनिट्स। ठीक है। एंड देन आई से and I say okay, you get a fourth component। but अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे extrude 1 F है, extrude 2 R है, extrude 3 T है, एक sketch भी आ गया, और उसके बाद extrude की ऑप्शन भी आ गया, और उसके अंदर भी एक sketch आ गया। so this is one component that I actually don't need। ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसको शो भी कर सकते हो आप। ठीक है। so this is basically linked to this sketch। यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटर्नल स्केच बोलते हैं, हम ये नहीं बनाते। हम ज्यादातर एक्सट्रूड के अंदर ही स्केचिंग करेंगे। दैट्स एन इंटरनल स्केच। व्हाट्स एन इंटरनल स्केच? दिस सेक्शन इज एन इंटरनल स्केच। व्हेन आई गो टू दिस, दिस इज एन इंटरनल स्केच। When I go to this,
This is basically a external sketch. We try to avoid as much as possible drawing external sketches. We do not go recommend them. क्योंकि अभी यहाँ पे if I delete this sketch, you'll see this is the parent and extrude 4 is the child. तो अगर मैं sketch 1 को delete करता हूँ, the extrude also gets deleted. ठीक है? We have the option to delink it as well. आप delink कर सकते हो. There are other options, but we do not recommend. I want the model tree to be as clean as possible. When I say clean as possible, I mean I want to have the least number of steps when I draw any component. For example, अगर आप ध्यान से देखो, this is what we are trying to do here as well. This object can be made in like 4 steps, 5 steps, 3 steps. But as per our understanding, we have like developed this like हमने ये component बनाया है सिर्फ 2 extrudes में. कई स्टूडेंट्स अगर बनाने पे आए, यू कैन डू लाइक 10 स्टेप्स एज वेल. यहाँ पे ये ब्लॉक बना लो पूरा एक रेक्टेंगुलर, फिर बाद में इसमें से ये एक हाफ आर्क निकाल के उसको एक्सट्रूड कट कर दो, यहाँ से भी एक्सट्रूड कट कर दो, ये भी एक कंपोनेंट पूरा बना लो. दे कैन बी 10 स्टेप्स इन डूइंग इट, बट वी वांट that in your model tree we should just see 2 extrudes. We are forcing you to do this because this is efficient like modeling procedure. ठीक है? So we do not recommend external sketches. अगर external sketches होंगे, and if they are not required, again there are like marks deductions. So do not go for external sketches. Go to the option of extrude, revolve, sweeps or swept blend, and then make the sketches inside them. यहाँ पे बाहर कोई sketch नहीं दिखना चाहिए. So any doubts? So अभी ओरिएंटेशन का कंसेप्ट समझ आ गया सबको कि किसी को कोई डाउट है? जी सृजन? नो सर So एक बार ओरिएंटेशन का कंसेप्ट कोई और एग्जांपल में दे सकते हो? ओरिएंटेशन का एग्जांपल क्वेश्चन ही ले लेते हैं आपकी ये ट्यूट शीट का. ट्यूट 1 का ले लो, पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं उसका. ठीक है? ME7 बैच, आप लोग आंसर मत करना, आपने तो कर लिया ये. So the other batches 8, 9 and 10, you guys like come up with the answer. So the first things we need to understand. अभी इसके ऊपर अगर फोकस करें, let me zoom in a bit. So यहाँ पे ये एक कंपोनेंट दिया हुआ है और मैंने बोल रखा है कि यहाँ पे 2 एक्सट्रूड दिखने चाहिए. कहाँ पे 2 एक्सट्रूड दिखने चाहिए? यहाँ पे ये दिख रहे थे 2 एक्सट्रूड. Alright? So we just need to extrude 1 and extrude 2. That's the first thing when we attempt this question. दूसरी बात, जो डायमेंशंस मुझे इस स्केच ड्राइंग के अंदर दी हुई हैं, मुझे सिर्फ वही डायमेंशंस यहाँ पे यूज करनी है. मैं कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं स्पेसिफाई करूंगा. दिस इज द सेम थिंग दैट वी डिड इन स्केचर मोड एज वेल. यहाँ पे भी द सेम स्टेटमेंट अप्लाइज. सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ ME8, 9 and 10 batch, you guys need to answer what is the drawing procedure. मेरे को पहले कौन सा कंपोनेंट बनाना चाहिए? ये 2 एक्सट्रूड्स दिख रहे हैं मेरे को. First of all, can you see that this object can be made with just 2 extrudes? Anyone having any doubts? कि ये नहीं, इससे ज्यादा लगेंगे सर, ये 2 extrude में नहीं हो सकता. किसी को डाउट कि ये 2 extrude में बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? Like any thoughts on that? I think it can be done in 2 extrudes. Once this component and then the other component, ये पीछे वाला. So there are just 2 extrudes. We'll make this sort of a geometry. ये जो सामने है, we'll extrude it. We make this sort of a geometry. We extrude it up or down depending upon the sketching plane that we chose. Any doubts in this, like understanding this particular statement? All good? Okay. So ME8, 9 and 10. Let me know if this is component 1, like if this is a component made up of 2 parts, part 1, part 2. मुझे part 1 से start करना चाहिए अपना construction या part 2 से करना चाहिए? What should I draw first? Part 1 or part 2? Part 2 sir. Part 1 part 1 से कर लो. Part 1 से कर लो. तो part 1 से क्यों करें? Part 2 is dependent on part 1 dimension. नहीं, आयुष से पूछते हैं. आयुष, आप part 1 से करवा रहे हो, part 1 से क्यों करें? सर क्योंकि उसमें सारी डायमेंशन गिवन है. और कौन सी फिर part 2 में भी सारी गिवन है? सर वो 100 वाली जो है ना, वो हमें स्पेसिफाई 100 जो है हमारा पूरा लेंथ, वो पार्ट 2 में वो हमें स्पेसिफाई नहीं करना ना. बिल्कुल. सो आयुष ने कहा, वो जो कहा है वो करेक्ट कहा है. बेसिकली हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 से इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे
क्योंकि हमारे पास ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ स्पेसिफाइड नहीं है, ये लेंथ डिपेंडेंट है पार्ट 1 के ऊपर, जो नीचे दिख रही है वो है 5 यूनिट्स की। सो वी विल गो फॉर पार्ट 1 फर्स्ट एंड देन पार्ट 2, क्योंकि इसको हम रेफरेंस बाद में दे सकते हैं। वी शुड नॉट स्पेसिफाई 100 यूनिट्स ऑन द टॉप। सो नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग के पार्ट 1 पहले बनाएंगे, लेट मी नो कि पार्ट 1 कौन से प्लेन पे बनेगा, कि फाइनली जब मैं अपनी ओरिएंटेशन ठीक करूंगा तो मेरे को ये स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में पार्ट घूम के ऐसे आएगा। पार्ट 1, forget about part 2 now. Right Right plane, plane, sir. sir. Right plane. Anyone having any doubts कि ये right plane पे बनेगा? So let's select the right plane. We go to extrude, we go to placement, we go to, I would say, define, we sketch on the right plane. Now right plane पे reference है top का, ठीक है? Top plane नीचे वाला plane, top plane की normal y है। y अभी वो कह रहा है कि वो left में orient करेगा। मेरा sketching plane है right, right means y z plane, y z में वो कह रहा है कि वो y को left में रखेगा। Is he correct? No, Should we sir. No, sir. कहाँ पे रखे Top y को? पे, top. Top पे, correct? So we go to top, we sketch it, we orient it. Now let's see what the part is. So यहाँ पे we need, I'll just draw the half part, ठीक है? Half part बना के इसको mirror करेंगे. You'll also learn about the mirror command now. So let's say we take a line, we do this. Let's say we do something like this. We take an arc, we take a circle. And I'll delete the other parts. We take the arc. Now let's specify the dimensions. Okay, we need this particular dimension. We need this particular dimension. We need this particular dimension. What else do we need? We need ye niche, ye chahiye, and okay, this one as well. We need this particular dimension. Now we have two weak dimensions. How do we eliminate them? Let's get on, like, let's hold them first and see कि गड़बड़ क्या हो रही है. So we select this one and we modify this to see कि गड़बड़ क्या कर रहा है. So when I rotate it, I can, let's go to some extremity. Let's put it down. Let's see. Okay. So this is what's happening. ठीक है. यहाँ पे ये एक vertical line है, ये arc है. यहाँ पे एक horizontal line है, ये एक arc है. Let's go back to the drawing and see कि यहाँ पे ये drawing इस तरह से इतनी अच्छे से कैसे दिख रही है. ये इस तरह से इतनी अच्छे से इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर वाली लाइन यहाँ पे आके मीट करती है इस पॉइंट पे, और ये सेंटर वाली लाइन नीचे आके भी इस वर्टेक्स को अच्छे से मीट कर रही है, तो बन रहा है. जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसको, इट इज नॉट द केस. ठीक है, मेरा सेंटर यहाँ पे रह गया, ये आर्क ऊपर चली गई, ये वर्टेक्स ऊपर चला गया, मेरा सेंटर यहाँ पे रह गया, ये वर्टेक्स नीचे रह गया. तो इसको मेरे को अलाइन करना चाहिए. सो लेट्स टेक दिस डायमेंशन, मॉडिफाई करके चेक करें कि कैसे ठीक हो सकता है. तो इसको मैं जब कम कर रहा हूँ, थोड़ा उसके जैसे मिलता जुलता पार्ट मुझे मिल रहा है, और मेरा ये वर्टेक्स इसके साथ यहाँ पे अलाइन हो रहा है, पर यहाँ पे नहीं हो रहा. दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंसर्न कि ये आर्क अलाइन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये आर्क और ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट है. So it's not tangent, sorry, perpendicular. If I make it perpendicular, I make this arc perpendicular to this horizontal line. Sorry, the perpendicular constraint. And I make this arc perpendicular to this vertical line. मेरे weak dimensions eliminate हो गए, correct? Now I'll take a center line. यहाँ पे center line लेते हैं. Here's the center line. And I'll mirror this entire thing. Correct? Before mirroring, what I can do is I'll teach you another thing, how you can get the dimension. This is just the half dimension, but I do not need the half, I need the full dimension. So I'll delete this. What I'll do is I'll go to this dimension option. I'll select this vertex and this center line. And if I take the dimension, I still get the half dimension, but मेरे को half dimension नहीं चाहिए इस arc का, मेरे को full dimension चाहिए. How do I get that? So for that, I'll go to dimension, I'll click on this vertex, I'll click on this center line, and I'll click back on this vertex. And then when I press the center scroll button, मेरे को मेरा पूरा dimension मिल जाता है.
ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गिव लाइक अ फुल डायमेंशन, क्योंकि मैंने इसको मिरर कर लेना है. सो फॉर मिररिंग व्हाट आई डू इज आई सिलेक्ट द एंटायर स्ट्रक्चर, आई गो टू दिस ऑप्शन ऑफ मिरर, आई सिलेक्ट दिस सेंटर लाइन, you get the entire arc here. बट अभी भी मेरी ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं हुई बिकॉज ये 30 वाली डायमेंशन मुझे नहीं दिख रही. वो इसलिए नहीं दिख रही बिकॉज यहाँ पे सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट लग चुका है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ. सो यहाँ पे वीक डायमेंशंस आ जाती हैं, उन्हें मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ. वन बाय स्पेसिफाइंग दिस डायमेंशन, द अदर वन बाय मेकिंग दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ. तो मेरी वीक डायमेंशंस एलिमिनेट हो जाती हैं. और इसको अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर दूँ, and if I lock the scale, let's say we specify all the dimensions now. यहाँ पे ये 30 30 30 चाहिए. We'll do this. This is 30. This is 30, and this is 30 as well. This is 15, and this is 35. And let's say okay. And the thickness is 30 units. So we just say 30 and we orient it in this direction and we just say okay. So ये आपका पार्ट काफी हद तक मिलता जुलता इसके साथ मैच कर रहा है. I think it's 10:25. मैं सेकंड जो इसका पार्ट है ना वो कल कंटिन्यू करता हूँ. I'll save it and बस इसमें एक चीज बता दीजिए, इस पार्ट में जब आप इसका टॉप व्यू बनाओगे ना, हाँ. तो सर आप में जो आपका जो प्लेन आ रहा है वो इसके बॉटम पे आ रहा है. मतलब हाँ. फिगर के बॉटम जो वाला पार्ट है उस पे आपका प्लेन शो हो रहा है, लेकिन मेरे में से टॉप पर प्लेन शो हो रहा था, टॉप वाला, मतलब इस फिगर के ऊपर. मतलब आपके पास आज ये वीडियो लेक्चर आ जाएगा, आप ये चेक करना मैंने कौन सा प्लेन सिलेक्ट किया और मैंने कहाँ से कंस्ट्रक्शन की है. मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया ना, मेरी ये लाइन आपने ये लाइन के नीचे ड्रॉ किया, तो आपका हो प्लेन सकता ऊपर है. आ रहा होगा. तो सर मैंने उसमें ये लाइन दिक्कत के होती ऊपर, है मतलब फिर दिक्कत तो अगर कोई से नहीं है. टाइम We can still construct the geometry, but it's good to like draw these figures as symmetric as possible. ठीक है. And your idea about saving it, I'll just save it. इसको सेव करो. यहाँ पे you can give it a name. You can give it just you can't you have to decide the name earlier only ना, वहीं पे decide हो जाता है. यहाँ पे अभी आपको save as करना पड़ेगा. save as करके आप कर सकते हो save a copy और save a backup. अब save a copy करो. यहाँ पे let's say save the new file with just 01 and you Excuse me, sir. जी. सर इसमें रेफरेंस प्लेन कौन सा सिलेक्ट किया हमने? राइट. रेफरेंस प्लेन टॉप का था. सो व्हेन यू गो टू ऑप्शंस, यहाँ पे देखो जस्ट वन पार्ट आपका सेव हो गया. आयुष आपने सेविंग का पूछा था. वी कैन डू दैट. ठीक है. सो आई विल एंड द लेक्चर. वी लाइक मूव जैसे पास्ट हम 2 लोग मिनट्स. स्केच मोड में सेव करते थे तो बीच बीच में सेव कर लेते थे, जिससे हमारा कभी पार्ट मतलब बीच में से उठाना होता था तो. हाँ. लेकिन पार्ट मॉडलिंग में अगर हम बीच में सेव करते हैं ना तब नहीं हो पाता है. अगर हम पूरा बना लें फिर सेव करें फिर ही होता है. कल मैं आपको करके दिखा दूंगा. पर्ज की कमांड, मेरा प्रीवियस लेक्चर जाके फॉलो करो एक बार. पर्ज की कमांड आपको सिखाई थी जो. नहीं ठीक सर, है. पर्च की कमांड से तो हम पिक्चर डिलीट करते हैं ना. मैं कह रहा हूँ कि जब स्केच करते हैं हम लोग हम्म. तो स्केच मोड में हम लोग बीच बीच में सेव करते रहते हैं ना. हम्म. अब पार्ट मॉडलिंग में अगर हम बीच में सेव करते हैं तो वो दूसरे नाम से सेव होता है. अगर हम पार्ट मॉडलिंग में पूरा पार्ट पहले कंस्ट्रक्ट कर लें फिर सेव करें फाइनली, तभी वो हमारे उसी नाम से सेव होता है जो हमने फाइल नेम में लिखा था स्टार्टिंग में. मैं आपको कल बताता हूँ, अभी लेक्चर एंड करने दो. आई डेफिनेटली, मैंने 4-5 बार सेव क्लिक कर दिया आपके सामने. मैं आपको कल अपना फोल्डर दिखाऊंगा विद डेट एंड टाइम एंड यू विल गेट टू नो कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. इसमें ओरिएंटेशन हमने टॉप की चूज किया ना? ओरिएंटेशन हमने टॉप की चूज की है. वाई की वाई टॉप पे होगा. यस. ठीक है. ओके. आई विल एंड द लेक्चर नाउ.